Good morning, students. Welcome to the geography session. We are into the sixth chapter of water resources, and we are trying to learn about the different resources of water that the world has, that India has, and how much water is used for what purposes. And we are seeing that a higher percentage of water is being used in agriculture, whether it is surface water or it is groundwater. Okay, we are also seeing how the water is getting polluted. In spite of the fact that we have got large number of rivers, our rivers are getting polluted. We have seen how Ganga, Yamuna and other rivers, there is high degree of pollution. Yamuna between Delhi and Etawah considered the most polluted river of India, and then also we see other rivers also which are very polluted. This pollution is also because of industries, and industrial effluent, industrial waste material is being dumped into these cities. The waste from cities is being dumped into these rivers, and that is why they are getting polluted. Even though we have got Central Pollution Control Board, we have got the State Pollution Board, there are a lot of laws like Prevention and Control of Pollution Act 1974, Environment Protection Act 1986, ये सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. And we saw that in 1997 there were 251 polluting industries which were still located on the banks of rivers and lakes. Okay, so in spite of these laws and a lot of pollution control board, the pollution of these rivers has not gone down. Recycle and reuse of water, this is very important because India has high population, and for this 16% of the world population, we have got only 4% of the world's water resources. So we have to use water judiciously, because our population is very large, and we are seeing that a lot of areas are having problem. We are seeing a lot of groundwater is being used by few states, and for agricultural purposes like Haryana and Punjab. So the water level is continuously going down in many areas of India. Okay. Now we are coming to an important topic which is called watershed management. This word may be new for you, and kind of a technical word but not very hard to understand. What is watershed management? Now it is very simple. Watershed management basically refers to efficient management. Okay, it refers to efficient management and conservation of surface and groundwater resources. दो ही जगह तो है water, okay, which is fit for human consumption. Okay, fresh water जिसे हम कहते हैं. So both the surface and groundwater resources को conserve करना and उसको efficiently manage करना, इसी को हम watershed management कहते हैं. Even though the word sounds new, there is nothing new. इस वाटर रिसोर्स को, ये सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना, उसको एफिशिएंटली यूज़ करना, एफिशिएंटली मैनेज करना और उसे कंजर्व करना, यही है वाटरशेड मैनेजमेंट. और ये डिफरेंट वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं. इनका सक्सेस डिपेंड करता है कि हाउ सक्सेसफुल दे आर, बट देयर आर स्टिल मेनी प्रोजेक्ट्स, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग and they are working on these projects which are called watershed management projects. Okay. Now ये करते कैसे हैं, इसका स्टेप क्या है? ये कह देना कि सरफेस वाटर को कंजर्व करना है और इसको एफिशिएंटली मैनेज करना है. But then how they will do it? They prevent the runoff. बारिश होने के बाद पानी obviously सरफेस से रन ऑफ होते हुए, उससे बहते हुए वो आगे चला जाता है. It will finally go into some drain, and that drain will go into some river, and then finally the water reaches the ocean. वो जो फ्रेश वाटर का जो सोर्स था वो वेस्ट हो गया. अगर हमने उसे ट्रैप नहीं किया, उस पानी को ग्राउंड के नीचे नहीं पहुंचाया, तो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल सही नहीं होगा, एंड दैट वाटर विल बी वेस्टेड. सो रन ऑफ वाटर को प्रिवेंट करना है, इसको रोकना है.
ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उसे हम रोक सकें, टैंक्स में स्टोर कर सकें एंड उसको ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के काम ला सकें एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड के नीचे जो पानी है जिसे हम कॉन्स्टेंटली निकालते हैं फॉर ऑल पर्पसेस, फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, उसको रेप्लेनिश करना होगा उस पानी की, फिर दोबारा वहाँ पर पानी पहुँचना भी चाहिए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम रिचार्ज करें ग्राउंड वाटर को, तो ज़मीन के नीचे जो पानी है उसमें पानी पहुँचाने की भी कोशिश करें। ओके, तो ये तरीके हैं और इसके लिए हम वेरियस मेथड्स यूज़ करते हैं एंड द मेथड्स लाइक परकोलेशन टैंक्स। परकोलेशन टैंक्स क्या होते हैं? परकोलेशन टैंक्स वो टैंक्स होते हैं जिनको इस तरह से बनाया जाता है कि जिनमें पहले पानी जाता है और फिर वो पानी धीरे धीरे रिस्क, परकोलेशन मीन्स उसको सोक, ग्राउंड सोक करते जाता है एंड फाइनली इट रीचेज दी वाटर विच इज बिलो दी ग्राउंड। इस तरह से हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसकी लेवल बनी रहती है, उसकी लेवल को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है बाय दिस परकोलेशन टैंक्स। परकोलेशन टैंक्स का जो सरफेस होता है वो हार्ड सरफेस नहीं होता है, उसमें पेबल्स, कंकड़, पत्थर, ये ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, चारकोल एंड ऑल, जो कि पानी को उसे फिल्टर करते जाएं, सोक करते जाएं एंड ग्राउंड के वाटर नीचे उसको रिचार्ज करें एंड रिचार्ज वेल्स एंड ऑल। तो इनके ज़रिए ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाया जाता है, ठीक किया जाता है। ओके, वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड्स कंजर्वेशन, ये एक ब्रॉड सेंस है, केवल पानी की बात नहीं हो रही है, इसमें सभी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज़ होता है ये वर्ड। रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक लैंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी को जुडिशियसली उसको वेस्ट नहीं करना है नेचुरल रिसोर्सेज को। एंड ह्यूमन्स विद द वाटरशेड, ओके, उनको जोड़ना है इससे, ये सब चीज़ों से, because there is a link in environment, there is always a link between everything. Okay, so watershed management aims at bringing about a balance between natural resources and society. एक तरफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड है और एक तरफ सोसाइटी है जिसकी डिमांड्स ज़्यादा है, इसके बीच में बैलेंस बनाना, दैट इज कॉल्ड वाटरशेड मैनेजमेंट। उसका ये काम है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज और सोसाइटी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करें। ओके, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इनिशिएटेड मेनी वाटरशेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन द कंट्री। सम ऑफ दीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, और कुछ ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के जो प्रोग्राम हैं उन्हें कई सारे NGOs इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, NGO का फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स कि इसमें गवर्नमेंट के लोग नहीं होते हैं एंड बाकी लोग होते हैं और इनका पर्पस कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका पर्पस होता है, इन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। एक तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सोशल वर्क करते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं। सो हरियाली इज अ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऐसा ही एक वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है हरियाली, और ये हरियाली एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। और ये हरियाली जो प्रोजेक्ट है ये रूरल पॉपुलेशन, ये रूरल एरियाज़ के लिए है, टू कंजर्व वाटर, रूरल एरियाज़ में पानी को कंजर्व करने के लिए, किस काम के लिए? फॉर ड्रिंकिंग, फॉर इरिगेशन, फॉर फिशरीज एंड अफॉरेस्टेशन, वहाँ पे पेड़ लगाना, वाटर की लेवल को इम्प्रूव करना, ये नॉर्मली गांव के पंचायतों के ज़रिए, वहाँ के प्रधानों के ज़रिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में, विलेज लेवल पर इसको करने की कोशिश कर रही है कि उनके पास पर्याप्त पानी हो पाए फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस। ओके, सो दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द ग्राम पंचायत विद पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की मदद से ग्राम पंचायत के लेवल पर ये काम हो रहा है। सो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिलो दी जो गवर्नमेंट्स में सबसे नीचे जो है पंचायत सिस्टम हमारा जो है, वहाँ पर लोगों के साथ एंड ग्राम पंचायतों के साथ ये प्रोजेक्ट चल रहा है। दिस प्रोजेक्ट इज कॉल्ड हरियाली, एक वाटरशेड मैनेजमेंट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, यहाँ पर रूरल एरियाज़ की वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं एंड बाकी पानी को ड्रिंकिंग पर्पसेस
सब चीज़ों के लिए पानी को कंजर्व करना, बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये हरियाली प्रोजेक्ट carried out by the central government in collaboration with the gram panchayats and the local people of the villages. एक और प्रोजेक्ट है which is called Niru Miru. Niru stands Niru, you know, stands for water. Miru means you. So ये Niru Miru which means water and you program. ये आंध्र प्रदेश में चल रहा है। और एक और प्रोजेक्ट है which is called आरवरी पानी संसद, और ये अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, अलवर में पानी की बहुत कमी है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और फिर अफॉरेस्टेशन काफ़ी हो चुका है। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, नॉट गवर्नमेंट, इट इज़ पीपल हु आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन कंजर्विंग वाटर एंड दे आर प्लांटिंग लॉट ऑफ ट्रीज। एंड ये आरवरी पानी संसद, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, have been taken and their constructions of various water harvesting structures उसको बना रहा है, such as percolation tank जिसकी हमने बात की, जिसमें पानी जाएगा और फिर वो धीरे धीरे ग्राउंड लेवल में चला जाएगा, ओके, बिलो दी ग्राउंड लेवल से। डग आउट पॉन्ड्स, जिन्हें जोहार कहते हैं, लोकल वर्ड है ये, डग आउट पॉन्ड्स खोद कर भी पॉन्ड बनाया जाता है, तालाब बनाया जाता है। चेक डैम से पानी के फ्लो को रोकने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए, थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो ये आगरी पानी संसद ये लोगों के पार्टिसिपेशन के जरिए चल रहा है। तमिलनाडु, आई टॉक अबाउट दिस इन माय अर्लियर क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, दे हैव लॉट ऑफ वाटर प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाई दे हैव मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ कंपल्सरी थिंग इन कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस। सो तमिलनाडु हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स in the houses compulsory. No building can be constructed without making structures for water harvesting. तमिलनाडु में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने पूरे स्टेट में हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना कंपलसरी कर दिया गया है, ओके। सो यही दो स्टेट सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि राजस्थान और तमिलनाडु, यही वाटर प्रॉब्लम से ज़्यादा है, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे चल रहे हैं, ओके। There's also one Niru Miru which is in Andhra Pradesh, okay. In majority of cases the program is still in its nascent stage, और nascent stage का मतलब है initial stages में है ये, और ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं, कुछ एक आध एरिया में ये ठीक से चल रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है हरियाली, now you know there are more than 6 lakh villages in this country, एंड इसका देखना होगा कि किस लेवल तक पहुंचा है, कितने विलेजेस में फाइनली इस हरियाली प्रोजेक्ट पे काम हो पाया है, शुरू हो पाया है। एंड दैट इज़ व्हाई वी कैन से दैट ये प्रोजेक्ट्स तो हैं बट ये इफेक्टिवली फुल स्केल पर काम नहीं कर रहे हैं, ये इनिशियल स्टेज पर है, इनको शुरू तो कर दिया गया है बट इनका अभी रिजल्ट आना बाकी है, इनको लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करना अभी बाकी है। सो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये प्रोग्राम अभी भी इनिशियल स्टेज पर है। देयर इज अ नीड टू जनरेट अवेयरनेस। लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तब तक ये वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू जनरेट अवेयरनेस रिगार्डिंग बेनिफिट्स ऑफ watershed development and management among people in the country, and through this integrated water resource management approach water availability can be ensured on sustainable basis। तो लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना ये प्रोग्राम्स का सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। दैट इज़ वाई पीपल हैव टू बी एजुकेटेड, उन्हें इन प्रोग्राम्स के बारे में बताना होगा, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स बतानी होगी, इनके बेनिफिट्स बताने होंगे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, ये पॉपुलेशन टैक्स क्या है, एवरीथिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। जब तक ये लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, वो इसका मतलब नहीं समझेंगे, वो इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली देयर इज नॉट मच यूज ऑफ दिस। देन अ वेरी सिंपल थिंग यू रेड इन क्लास 10th एंड जूनियर क्लासेस व्हाट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज। यहाँ पे पिक्चर्स के जरिए भी समझाया गया है कि कहीं पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज रेन वाटर जितना भी होता है ज़्यादातर इट इज़ रन ऑफ, ये सरफेस से ऊपर
ऊपर से निकल जाता है। एंड लॉट ऑफ सिटीज़, नाउ इफ यू टेक दिल्ली, देन वहाँ पर मोस्ट ऑफ द सरफेस दैट इज़ कंक्रीट, या तो रोड है या कोई घर बना हुआ है, तो पानी जब उस पर रोड पे या घर पे गिरेगा, इट विल नॉट बी ऑब्वियसली, इट विल नॉट गो अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल को नहीं बढ़ाएगा, ये उनसे ट्रेन से होते हुए it will obviously go into rivers and finally into the sea. So this will be wasted unless we make rainwater harvesting systems there, and we try to obviously send this water below the ground so that the groundwater remains high. Okay, so ये rainwater harvesting system ये important है। ट्रेडिशनल rainwater harvesting system हमें देखने को मिलता है कि राजस्थान में यहाँ से नहीं, बहुत साल पहले से चला आ रहा है, एंड पीपल देयर हैव यूज्ड दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। उनके घर के बीच में एक टैंक होता है, उस टैंक में ये पानी कलेक्ट होता है रेन वाटर का, एंड ड्यूरिंग समर मंथ्स एंड ऑल जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उस पानी को यूज़ करते हैं। इसके और भी फ़ायदे हैं। सेंटर में कोर्टयार्ड में जब ये वो टैंक बनाते हैं और उसके आसपास रूम्स बनाते हैं, तो रूम्स भी उन्हें भी ठंडक मिलती है। दे ऑल्सो रिमेन कूल बिकॉज उनके नीचे वो वाटर सोर्स है, एंड इससे वाटर लेवल भी ठीक रहता है। द हाउस ऑल्सो रिमेन्स कूल, एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड ड्यूरिंग समर मंथ्स obviously people have a regular supply of water. Okay, so this is important. Rajasthan rainwater harvesting structures locally known. Obviously, you can see the photographs there, harvesting through watershed management, harvesting through service wells. So, different techniques about rainwater harvesting. Okay. Besides bridging the demand supply gap, जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, उसे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से पूरा किया जा सकता है। हमारी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, लेकिन अगर हम पानी को जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट करेंगे तो फिर हमारा वाटर सप्लाई जो डिमांड एंड सप्लाई है इसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। नाउ देयर इज आल्सो वन इम्पोर्टेंट पॉलिसी दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, एंड दिस इज इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी। इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी ये 2002 में बनकर तैयार हुई। द नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव नॉट रिटन डाउन द पॉइंट्स ऑफ दिस, आई विल स्पीक देम आउट, प्लीज नोट देम डाउन। द नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, तो ये 2002 में बनकर तैयार हुई हमारी। इसका काम है टू एलोकेट वाटर प्रायोरिटीज ब्रॉडली इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहला जो ज़रूरी जो माना गया है नेशनल वाटर पॉलिसी में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी गई है ड्रिंकिंग वाटर। फर्स्ट, पीपल मस्ट हैव ड्रिंकिंग वाटर एंड राइट क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। साफ स्वच्छ पानी पीने के लिए अवेलेबल होना, दैट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस पॉलिसी। गवर्नमेंट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के पास प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर पहुँचे। ओके, देन ऑब्वियसली वाटर फॉर इरीगेशन, हाइड्रो पावर, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल एंड अदर यूजेस, ऑब्वियसली इन सब को ध्यान में रखते हुए ये नेशनल वाटर पॉलिसी बनी है। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो नेशनल वाटर पॉलिसी में क्लियरली इट हैज बीन लेड डाउन दैट ड्रिंकिंग वाटर, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स शुड बी दी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ अचीव करनी है इस नेशनल वाटर पॉलिसी में, वो है कि सभी को ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया जाए। मेजर्स शुड बी टेकन टू लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ये जो ग्राउंड वाटर को ज़रूरत से ज़्यादा जो निकाला जा रहा है, इसको जो एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, उसको रोकना है। ऑब्वियसली ऑल दिस will apply to states like Haryana and Punjab and even Western UP, where the farmer is using a lot of groundwater. They are exporting groundwater to a large extent. उसे रोकने की कोशिश करनी है। Both surface and groundwater. Now you may say कि अगर groundwater नहीं निकलेगा तो agriculture नहीं होगा. That is not the case. Obviously, some crops require lot of water, like paddy. Some crops do not require that much of water, like bajra. It does not require too much of water. So it depends कि कौन सी crops किस region में होनी है. Obviously, वो region जहाँ पर rainfall
they cannot opt for crops which require a very high supply of water. तो पैडी को राजस्थान पंजाब में ग्रो करना, that is not a very good idea and it should be stopped because ground water level इसकी वजह से कम हो रही है. Okay. Whereas growing paddy in Odisha, Bengal, Kerala, that is absolutely fine because वहाँ पर rain water काफ़ी होता है and rainfall is very high, so there is no problem there. But areas which receive less rainfall, जिनका ग्राउंड वाटर लेवल कम है, they should not be allowed to grow water intensive crops. वो क्रॉप्स जिनमें वाटर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है उन्हें नहीं अलाउ करना चाहिए. So measures should be taken to limit and regulate the exploitation of groundwater. There is also a variety of maize. Maize basically is a kharif crop, जुलाई के बाद लगती है. But there is also a variety of maize जिसे लोग जून में करते हैं. But for that water, they obviously use groundwater. Okay, so that is also being discouraged and government is trying to उन areas में लोगों जहाँ पे पानी कम है. So crops like maize and paddy and all, government is trying that they should not be grown in areas where there is less rainfall. Okay. So first point was providing drinking water to all human beings and animals. Second was to limit and regulate the exploitation of groundwater. Okay, उसे ठीक से मैनेज करना. Both surface and groundwater should be regularly monitored for quality. इसकी क्वालिटी को चेक करना जरूरी है कि कहीं इसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो रही है. Okay, and improving water quality, that is important. Awareness of water as a scarce resource. लोगों को एजुकेट करना that water is an important resource, that is important. तो ये है हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी. You should remember these 5 main points जो मैंने हाईलाइट किए हैं. These are important. Providing drinking water to all human beings and animals. Second is to limit and regulate the exploitation of groundwater. Third, both surface and groundwater should be regularly monitored for their quality. Fourth point, it could be the awareness of water as a scarce resource. तो ये 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेशनल वाटर पॉलिसी में जो बनाए गए in 2002. There is also one more अभियान, you can say one more effort being taken by the government and इसे जल क्रांति अभियान के नाम से जाना जाता है. ये गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया. So one is national water policy जो कि 2002 से हमारी चल रही है and there is another which is जल क्रांति अभियान 2015 में से ये शुरू हुआ. Again concepts वही हैं, सेम चीज़ें हैं. Water is recyclable resource but its availability is limited and the gap between demand and supply वो बढ़ते जा रहा है. Okay. And जल क्रांति अभियान को फिर लॉन्च किया गया 2015-16. इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट्स हैं. एंड जल क्रांति अभियान एम्स एट इन्वॉल्विंग, की कोशिश है कि वो लोकल बॉडीज, NGOs एंड सिटीजन्स इनको इन्वॉल्व करें. एंड सिलेक्शन ऑफ वन वाटर स्ट्रेस्ड विलेज इन ईच 672 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री टू क्रिएट अ जल ग्राम. तो ये है कि हर ग्रुप एक विलेज को सेलेक्ट करेगा. कहाँ पर सेलेक्ट करेगा? देयर आर 672 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री. वहाँ पर किसी एक गांव को सेलेक्ट करना है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल कमांड एरिया ऑफ अबाउट 1000 हेक्टेयर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, मेघालय. वहाँ पर एक मॉडल कमांड एरिया 1000 हेक्टेयर्स का, वहाँ पर इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे करके देखना है. इसको बाकी एरिया में फिर से इम्प्लीमेंट किया जा सके. वाटर कंजर्वेशन एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज, रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्स इन सेलेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री, क्रिएटिंग जनरल अवेयरनेस. There is not much difference between the national water policy of 2002 and जल क्रांति अभियान. ओके, उसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है. इसमें पीपल पार्टिसिपेशन की ज़्यादा बात कही गई है एंड इसमें हाईलाइट किया गया है कि हाउ वाटर इज़ अ वेरी स्केर्स रिसोर्स. पब्लिक अवेयरनेस
पॉइंट्स की बात की गई है, नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द टू, ओके, पॉइंट्स वही हैं एंड ऑब्वियसली उसको एक रीलॉन्च किया गया है इन 2015. So that is all in this chapter of water resources, and there are questions discuss the availability of water resources in the country and the factors, okay. Simple है, you can obviously go through the exercises if you have doubts. There's always doubt session in which you can ask me, okay. And soon we'll be having doubt session. In fact, from today we'll be starting the doubt sessions in live sessions, okay. On Google we'll be doing the doubt session. I request you all to participate in those doubt sessions. Okay. Thank you.